Good morning students, myself Shailja Sharma. Today I will teach you Punjab history and culture. In Punjab history and culture you have to purchase the book of writer Raghunathan Rai. Okay, you have to purchase this book for Punjab history and culture. In this subject we are going to study about the Punjab, condition of Punjab during the Mughal period and during the British rule. After that, in this subject we are going to talk about the 10 gurus of Sikh religion and their contribution which they have made for the development of Sikh religion, for the upliftment of Sikh religion. So today we are going to start the topic of first guru, that is Guru Nanak Dev Ji and his teaching. You all know about Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji was the founder of Sikh religion and he was the first guru of Sikh religion. So our first chapter which I am going to discuss with you is Guru Nanak Dev Ji, their early life, how they spent their life, which occupations they follow, and their teachings which they have given to us for the development of Sikh religion. Guru Nanak Dev Ji was the first guru of Sikh religion. He was born in Talwandi Sabo in 1469. His father name is Mehta Kalu Ji and his mother name is Bibi Mata Tripta, Bibi Tripta, or we can say it as Mata Tripta. Now I am going to talk about his childhood, that how Guru Nanak Dev Ji spent his life in the early childhood. In the early childhood, Guru Nanak Dev Ji was a very kind-hearted child. He was very kind-hearted. Since during the time of his early education, his parents thought about the sacred thread ceremony of Guru Nanak Dev Ji. उन्होंने क्या कहा, गुरु नानक देव जी की जनेऊ की रस्म के बारे में सोचा. क्लियर? द पेरेंट्स ऑफ गुरु नानक देव जी डिसाइडेड टू परफॉर्म सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी. बट जो गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, बट गुरु नानक देव जी इज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट थ्रेड. गुरु नानक देव जी वो थ्रेड नहीं डालना चाहते थे, वो सेक्रेड थ्रेड नहीं डालना चाहते थे, विच इज मेड ऑफ कॉटन. ही वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट थ्रेड विच इज मेड ऑफ गुड डीड्स. जो अच्छे विचारों का जनेऊ हो, वो उसको क्या करना चाहते थे, डालना चाहते थे. गुरु नानक देव टू एक्सेप्ट दैट थ्रेड एंड ही सेड दैट ही वांट दैट सेक्रेड थ्रेड विच वॉज मेड ऑफ गुड डीड्स. जो किसमें बना हो, गुड किसके साथ बना हो, गुड डीड्स, अच्छे विचारों के साथ क्या हुआ बना हो. गुरु नानक देव जी फादर मेहता कालू जी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हिम because Guru Nanak Dev Ji always involved in the meditation of God. Guru Nanak Dev Ji हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे. So his father Mehta Kalu Ji want to change his views and to change his outlook. He wants to involve Guru Nanak Dev Ji in the worldly affairs. At that time, Guru Nanak Dev Ji always do meditation. Always, each and every time, he is busy in doing meditation, and he forgot about his worldly affairs. So Guru Nanak Dev Ji want that his father involved him in worldly deeds. For this, his father Mehta Kalu Ji first give him the cattle. उन्होंने कैटल्स दी उनको क्या करने के लिए, चारा खिलाने के लिए, खेतों में ले जाने के लिए. Guru Nanak Dev Ji persuade him to graze cattle in order to divert his attention. उनकी अटेंशन को डिवर्ट करने के लिए उन्होंने उन्हें कहा कि आप जाके काउस को लेकर क्या करो, खेतों में जाकर उनको ग्रेजिंग करवा के लाओ. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज टू द वर्ल्डली एक्टिविटी. वो उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटी से उनका ध्यान कहाँ पे लेके जाना चाहते थे, वर्ल्डली एक्टिविटीज पे लेके जाना चाहते थे. वाइल्ड कैटल ग्रेजिंग, जब वो कैटल ग्रेज कर रही थी, ठीक है, इन द फील्ड, गुरु नानक देव जी इज यूजली लॉस्ट हिमसेल्फ इन डीप मेडिटेशन. लेकिन गुरु नानक देव जी क्या थे, उस टाइम पे भी डीप मेडिटेशन में क्या हुए थे, लगे हुए थे. एंड कैटल डिस्ट्रॉय ऑल द फील्ड्स. और कैटल्स ने क्या कर दिया, सारी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया. फॉर दिस गुरु नानक देव जी इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड. हिज फादर इज ऑल्सो वेरी मच डिसअपॉइंटेड. आफ्टर दैट मेहता कालू जी थॉट ही गेव हिम 20 रुपीज. मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को 20 रुपीज दिए फॉर डूइंग अ बिजनेस. But Guru Nanak Dev Ji, after this, his father gave him 20 rupees to start some business. But Guru Nanak Dev Ji spent the entire amount in feeding the poor. ठीक है, poor को खाना खिलाने में उन्होंने ये सारा पैसा क्या कर दिया, खर्च कर दिया. Guru Nanak Dev Ji's father Mehta Kalu Ji again very much disappointed from the activities of Guru Nanak Dev Ji.
Now Guru Nanak Dev Ji father thought about his marriage, and Guru Nanak Dev Ji was married to Bibi Sulakhani. ठीक है, उनकी शादी की गई बिबी सुलखनी के साथ. आफ्टर दैट ही वेंट टू करतारपुर. उसके बाद वो वहां पे क्या चले गए, करतारपुर चले गए विद हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ करतारपुर गए. इन द करतारपुर एट द एज ऑफ नियर अबाउट 30 ईयर्स गुरु नानक देव जी गॉट एनलाइटमेंट. ठीक है, उनको एनलाइटमेंट मीन्स, ठीक है, उनको भगवान की प्राप्ति हुई. ठीक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई. ठीक है, इन कहां पर हुई इनको मोक्ष? इन द कालीबेन रिवर. कालीबेन रिवर में ही गॉट एनलाइटमेंट. ठीक है, उनको एनलाइटमेंट हुई, भगवान की प्राप्ति हुई. गुरु नानक देव जी गॉट एनलाइटमेंट एट द रिवर कालीबेन एंड ही वांट्स टू स्पेंड. और उनको जो नॉलेज मिली, ठीक है, व्हेन ही गॉट एनलाइटमेंट ही गेट्स द नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, एंड ही वांट टू स्प्रेड दैट डिवाइन नॉलेज इन द होल वर्ल्ड. वो अपनी उस डिवाइन नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में क्या करना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे. ठीक है, एंड ही वांट टू स्प्रेड हिज डिवाइन नॉलेज अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. वो अपने पूरे वर्ल्ड में उस डिवाइन नॉलेज को क्या करना चाहते थे, स्पेंड करना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे. इसलिए गुरु नानक देव जी वेंट टू ट्रेवल्स. ठीक है, वो कहां पर गए, ट्रेवल्स पे. उदासी वी कॉल इट एज उदासीज पे गए. उदासीज मतलब ही वेंट टू डिफरेंट एरियाज टू स्प्रेड द नॉलेज विच ही हैज गॉट. ठीक है, आफ्टर एनलाइटमेंट ही वांट टू स्प्रेड दैट. फॉर दैट गुरु नानक देव जी वेंट ऑन उदासीज एंड वी कैन से इट एज ट्रेवल्स. आफ्टर गेटिंग द एनलाइटमेंट गुरु नानक देव जी लेफ्ट हिज जॉब. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी. ठीक है, एंड ही वेंट इन डिफरेंट corners of the world. First he went to south, north, east and west to provide his knowledge to the people of the world, that divine knowledge which he gets after enlightenment. After attaining enlightenment, Guru Nanak Dev Ji decided to spread the divine message for the spiritual benefit of humanity. ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए वो इस नॉलेज को क्या करना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे. And he left his job and started his journey dressed as a फकीर. वो एक फकीर का चोला डाल लिया उन्होंने, फकीर बन गए, एक सेठ बन गए. और उन्होंने क्या सोचा कि मैं ये नॉलेज अलग अलग क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम जो लोग थे वो गलत एक्टिविटीज में क्या हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे. वो सुपरस्टिशंस में क्या हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे. एंड गुरु नानक देव जी उनको इस नॉलेज को क्या करना चाहते थे, प्रोवाइड करना चाहते थे. The historians of the Sikh call the travels of Guru Nanak Dev Ji as Udasis of Guru Nanak Dev Ji. तो इसको जब वो ट्रेवल्स पे गए we call it as Udasis. हिस्ट्री में इनको क्या बोला जाता है, उदासीस बोला जाता है. क्लियर? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट उदासीस. ठीक है, मैं डिफरेंट ट्रेवल्स जो गुरु नानक देव जी ने किए मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ. इन द फर्स्ट उदासी, जब वो फर्स्ट टाइम गए, ट्रेवल किया उन्होंने, गुरु नानक देव जी वेंट फ्रॉम सुल्तानपुर लोधी टू सैयदपुर. सबसे पहले फर्स्ट वो कहां पर गए, सुल्तानपुर लोधी से कहां पर गए, ही वेंट टू सैयदपुर. आफ्टरवर्ड्स ही वेंट कुरुक्षेत्र पानीपत. गुरु नानक साहिब एनकरेज द पीपल टू डू गुड. वहां पर जाकर गुरु नानक देव जी ने लोगों को इनकरेज किया अच्छे कामों को क्या करने के लिए, गुड डीड्स को, गुड पाथ को क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए. दैट यू हैव टू फॉलो द गुड पाथ एंड यू हैव टू डू द गुड डीड्स. In the second Udasi, Guru Nanak Dev Ji passed through Jalandhar, Hoshiarpur and finally reached Himachal Pradesh. Second Udasi में वो जलंधर गए, होशियारपुर गए और लास्ट में हिमाचल प्रदेश. There also he provide his divine knowledge to the people. ठीक है, so that people led a peaceful life. उन्होंने ये नॉलेज इसलिए दी ताकि लोग क्या कर सके, एक पीसफुल लाइफ को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके. In the third Udasi, Guru Nanak Dev Ji started third Udasi in Pakpatan and finally reached Sayyid. Again he come back to Sayyidpur and after Sayyidpur he come back to Sultanpur. In this way, Guru Nanak Dev Ji, by the way of Udasis, Guru Nanak Dev Ji spread his divine knowledge among the humanity. उन्होंने इस ह्यूमैनिटी में लोगों के अंदर अपनी नॉलेज को क्या किया, स्प्रेड किया. अब which knowledge he is spreading among the people? Now we are talking about that. We are talking about the teachings of Guru Nanak Dev Ji. Now I am talking about teachings of Guru Nanak Dev Ji, which is the most important topic in this chapter. This is the most important topic in this chapter, Guru Nanak Dev Ji with his teachings. The first teaching of Guru Nanak Dev Ji is that there is one God, that there is only one God. ठीक है, गुरु नानक देव जी बिलीव इन ओमकार सतनाम. ठीक है, गुरु नानक देव जी किस में बिलीव करते थे कि हमारे यहाँ पे एक भगवान है, सभी को एक भगवान की क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए.
Guru Nanak Dev Ji gave the message of one God. It was the core of all history. ये इनका main teachings का क्या था, एक part था that there is one God, there is no casteism, कोई caste नहीं है, कोई creed नहीं है, all of us have to follow only one God. Second, the second teaching of Guru Nanak Dev Ji, God is formless and self-created. In this, Guru Nanak Dev Ji said that God has no shape, no size, he is formless. एंड ही इज नॉट क्रिएटेड बाय एनीवन, कि हम उसको नहीं बना सकते हैं, उसका कोई आकार नहीं है. गुरु नानक देव जी डिक्लेयर दैट गॉड इज फॉर्मलेस, इट डज नॉट हैव एनी शेप, उसकी कोई शेप नहीं है. ठीक है, इसलिए गुरु नानक देव जी इज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे. ही डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं थे. बिकॉज ही सेज दैट गॉड इज फॉर्मलेस. ठीक है, गॉड क्या है, फॉर्मलेस है. ही हैज नो शेप, उनकी कोई भी शेप नहीं है. थर्ड टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी इज दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट. Omnipresent means that God is in each and every corner of the world. It is also inside the human beings. वो human beings के अंदर भी है और हर एक जगह पे वो क्या है, प्रेजेंट है. ओमनी प्रेजेंट मीन्स कि गॉड इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर. एंड ओमनीपोटेंट मीन्स दैट वी कांट बाउंड गॉड इन द फोर वॉल्स ऑफ अ टेम्पल, गुरुद्वारास, मॉस्क्यूज, चर्च. दैट मीन्स गॉड इज इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, हम गॉड को बांध कर नहीं रख सकते हैं इन फोर वॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, God is omnipotent and omnipresent. Guru Sahib said that he is present everywhere. He cannot be within the four walls of a temple. वो temple की four walls के बीच में नहीं होंगे. This is the third teaching of Guru Nanak Dev Ji. Now I am moving to the fourth teaching of Guru Nanak Dev Ji. That is God is kind. भगवान क्या है, दयालु है. Means the person who worship God, who meditate about the God always help him. गॉड हमेशा उसकी मदद करने के लिए वहां पर आता है. गुरु नानक देव जी सेड दैट गॉड इज वेरी काइंड. ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ हिज बिलीवर. जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनके दिलों में रहता है. और अगर उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देयर इज ऑलवेज गॉड टू हेल्प हिम. तो उनको हेल्प करने के लिए हमेशा वहां पे क्या होता है, भगवान प्रेजेंट होता है. नाउ फिफ्थ टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी, गॉड इज सुप्रीम. गॉड क्या है, सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है. ठीक है, गॉड की पावर को वी कांट जज, वी कांट मैयर. हम उसकी पावर को मैयर भी नहीं कर सकते हैं, हम उसकी पावर को जज भी नहीं कर सकते. गुरु नानक देव जी डिक्लेयर दैट गॉड इज सुप्रीम एंड ग्रेट. फॉर हिम इट वॉज बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड हिज सुप्रीम पावर. वी कांट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गॉड, वी कांट मैयर द पावर ऑफ गॉड, वी कांट डिफाइन द पावर ऑफ गॉड. गॉड इज सो मच सुप्रीम. गॉड इतना पावरफुल है. ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो गॉड की पावरफुलनेस, इस ग्रेटनेस को क्या कर सके, मैयर कर सके या उसको डिस्क्राइब कर सके. वी कांट डिस्क्राइब द पावर ऑफ द गॉड. गॉड इज वेरी मच सुप्रीम. दिस इज द फिफ्थ टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी. नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हिज एडिक्ट्स और हुकम. गुरु नानक देव जी बिलीव दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू फॉलो द हुकम ऑफ हिज गुरु. गुरु नानक देव जी ये कहते हैं कि हर एक पर्सन को अपने गुरु का क्या मानना पड़ता है, हुक्म मानना पड़ता है. ठीक है, एनी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी अगर लाइफ में एक्टिविटी हो रही है वो गॉड के हुक्म के बिना नहीं होगी. ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. देखो, द टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी वर फुल ऑफ प्रेज ऑफ हुक्म ऑफ गॉड. एवरी स्मॉल इवेंट इन टेकन प्लेस विद द हुक्म ऑफ गुरु नानक देव जी. कोई भी स्मॉल से स्मॉल एक्टिविटी है दैट विल बी अंडर द हुक्म ऑफ गुरु नानक देव जी और अंडर द हुक्म ऑफ गॉड. कोई भी एक सिंगल स्मॉल से स्मॉल एक्टिविटी भगवान के हुक्म के बिना नहीं हो सकती है. क्लियर है ये बेटा. नाउ वी हैव डन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी. ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी, occupations which Guru Nanak Dev Ji have followed. After that Guru Nanak Dev Ji got enlightenment. ठीक है, after that he went to Udasis, 3 Udasis where he went into the Udasis, and the last one is the teachings of Guru Nanak Dev Ji. You have to complete the 6 teachings of Guru Nanak Dev Ji. आपने 6 teachings Guru Nanak Dev Ji को क्या करना है, follow करना है.
And with this chapter and with this topic, these are the most important topic of this chapter. Your chapter is finished. This is the second chapter of your book. You have to purchase the book of रघुनाथन राय. रघुनाथन राय की आपने बुक परचेज करनी है, ठीक है. उसमें आपका ये सेकंड चैप्टर है, गुरु नानक देव जी एंड हिज टीचिंग. आफ्टर दैट आई एम मूविंग टू द थर्ड चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसमें वी विल डू 9 गुरुज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सिख रिलीजन. 9 गुरुज है और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सिख रिलीजन. ओके बच्चे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.